بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حج کی شروعات کیسے ہوئی؟ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں آخر حج کی شروعات کیسے ہوئی۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو آدم علیہ السلام کے دور میں ہی ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین میں بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا تو اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی ڈھہ گیا تھا، مگر اس طوفان میں بھی کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقعی ہے۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ ہی کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا، ایک مسکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہیں کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی کہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤ۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے۔ یہی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے۔ نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانوں میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 20 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈالی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ بہت روشن ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں تمام مقام دکھائے۔ اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس
पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया। ए लोगों, अल्लाह ताला के एक घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज़ पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज़ को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज़ को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी यह आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी यह ख्वाहिश हो गई कि वे भी अल्लाह ताला के इस पाक घर की जियारत करें। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखे। मौलानाओं के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से ही हज की शुरुआत हुई और सबसे पहले हज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल कदरी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सहारन ने उर्दू में मुंतकिल किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती है। 60 तवाफ़ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत उस्मान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि यह सब रहमतें दर हकीकत तवाफ़ करने वालों के लिए है कि वह तवाफ़ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है, खानाए काबा में तरह तरह की फजीलत है, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डरकर आया है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खानाए काबा 11 बार तामीर हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुर्म ने तामीर किया, कासिम ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान में से था। कुरैश की जानिब से तामीर 9 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वह काफ़ी नहीं था, इसलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ 1 बालिश जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ़ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी। दरवाज़ा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की तामीर बैतुल्ला के बारे में ताहिरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस तरह करने के बाद काबा को बिल्कुल ज़मीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वह 6 हाथ और 1 बालिश हजरे इस्माइल में दाखिल है। लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाज़ा दाखिले के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे सतह ज़मीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पार्ट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके ज़माने में ये चारों सुतून चूमे जाते थे। आपने रुकने सामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उस सोने से मुअय्यन किया था। छत पर नाला लगा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए
और बहुत सी बकरियां ज़िबा की गई। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुँचे और उम्रा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुआसरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई जो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकनी यमनी जला डाला। यह वाक़िया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाज़ा मस्जिद बना दिया था, उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। ताहिरुल करवी लिखते हैं कि खानाए काबा की हर एक चीज़ अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है, वह हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वह अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 साबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराज में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमे रात को असर के वक्त काबा की सामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिब दीवार भी दोनों तरफ से छठे हिस्से के बख्तर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनाचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में यह तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल TTS स्टोरी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए सच्चे और अच्छे इस्लामिक बयानात वीडियो लाता रहूं। खुदा हाफिज।